میرے محترم دوستو، آپ یہ واقعہ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر یہ آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے دونوں شہزادوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے سیدنا حضرت عبداللہ سے فرمایا، جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ یہ بات سیدنا حضرت عبداللہ کو ناگوار گزری۔ انہوں نے سوچا کہ میرے والد وقت کے امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، تو سیدنا حسین نے مجھے یہ بات کیوں کہی؟ وہ گھر تشریف لائے اور اپنے والد سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ بابا جان، مجھے آج سیدنا امام حسین علی مقام نے یوں کہا ہے، جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ یہ بات جب سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اور دوات اور قلم سیدنا حضرت عبداللہ کو دی اور فرمایا، بیٹا یہ لے جاؤ اور حسین سے لکھوا کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ بڑے خوش جا رہے ہیں کہ جب حسین نے یہ تحریر فرما دی، اس کے بعد میرے بابا ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور بلا کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ میرے محترم بھائیو، یہ واقعہ ایسے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اس وقت سیدنا حضرت عبداللہ کی عمر 13 سال تھی اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ آپ بہت ساری حدیثوں کے راوی ہیں۔ اگر آپ نابالغ ہوتے تو محدثین آپ کی روایت کو کیوں لیتے؟ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی عمر 11 سے 13 سال کے درمیان میں تھی اور سیدنا حضرت عبداللہ بھرپور جوان تھے۔ عربی زبان میں جو بچہ بالغ ہو جائے اس کو کہتے ہیں بلغہ، اور جو بھرپور جوانی کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں اشدہ۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھرپور جوان تھے۔ تو ایک نوجوان جو بھرپور جوان ہے وہ بچے کے ساتھ کیوں کھیلے گا؟ اور اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ سیدنا حضرت عبداللہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ ادب کی وجہ سے کھیلتے تھے، تو پھر جب سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے یہ فرمایا، جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو سیدنا حضرت عبداللہ غصہ کیوں کریں گے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بچے تو نہیں تھے جو غصہ کر لیتے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی بات کا۔ اور پھر آپ جانتے تھے کہ میرے والد محترم ان دونوں شہزادوں کا کتنا ادب کیا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کا اتنا ادب کیا کرتے کہ جب یہ دونوں شہزادے سیدنا حضرت عمر کے سامنے آ جاتے تو سیدنا حضرت عمر سلام میں پہل کرتے۔ ایک دن سیدنا حضرت امام حسین نے سیدنا حضرت امام حسن سے کہا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں امیر المومنین حضرت عمر کو پہلے سلام کروں۔ تو انہوں نے طریقہ بتایا کہ بھائی جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ چھپ جائیے گا، جب وہ آپ کے قریب آئیں گے تو آپ سلام میں پہل کر لیجئے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے دیکھا کہ سیدنا حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے تو حضرت عمر نے سلام میں پہل کی اور فرمایا، السلام علیکہ یا حسین ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سیدنا حضرت امام حسین ستون سے باہر آئے اور تعجب سے پوچھا، اے عمر آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس ستون کے پیچھے ہوں؟ تو سیدنا حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اے حسین آپ کی سیرت و صورت ہی نہیں بلکہ آپ کی خوشبو بھی میرے نبی سے ملتی ہے۔ میں نے آپ کی خوشبو سے پتہ لگا لیا کہ حسین یہیں آس پاس موجود ہیں۔ آپ دونوں ہستیوں کی آپس میں محبت کا اندازہ لگائیں۔
सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे होते, अगर मस्जिद में सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम आ जाते, आप खुतबे को रोक देते, मिंबर से नीचे उतरते, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम को उठाते और मिंबर पे साथ ले जाते, अपनी गोद में बिठा के आप खुतबा इरशाद फरमाया करते। एक मरतबा दूसरे मुल्क के कुछ सफ़ीर आए और वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिले। आप उनसे बैठ के कोई ज़रूरी मशवरा कर रहे थे कि इतनी देर में हज़रत अब्दुल्ला आ गए। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी, लेकिन सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने इनकार फरमा दिया। वो बाहर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने जब सैयदना हज़रत अब्दुल्ला को बाहर खड़े देखा तो पूछा, आप अंदर नहीं गए? तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, अंदर कोई ज़रूरी बात चल रही है, इस वजह से मुझे बाबा ने अंदर जाने से मना कर दिया। तो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम भी वहाँ रुक गए। अब सैयदना हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, ए हुसैन पाक, आप अंदर तशरीफ़ ले जाइए, मुझे मना किया गया है, आपको मना नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अब्दुल्ला जानते थे कि सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम को नहीं रोका जाएगा। क्या मतलब? हज़रत अब्दुल्ला ये जानते थे कि मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा मोहब्बत हसनैन करीमैन से करते हैं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सैयदना हज़रत उमर को सैयदना हज़रत हुसैन की खुशबू आई। आपने सफ़ीरों को वहीं छोड़ा और बाहर तशरीफ़ ले आए। जब देखा तो सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम भी हज़रत अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। तो सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम से फरमाया, हुसैन आप अंदर क्यों नहीं तशरीफ़ लाए? तो सैयदना हज़रत हुसैन ने फरमाया, जब मुझे अब्दुल्ला ने बताया कि मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली तो मैं भी यहीं ठहर गया। ये सुन के सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए, अपना इमामा उतार दिया और अपने सर के बाल पकड़े और फरमाया, हुसैन ये मेरे सर पे बाल किसने उगाए हैं? इसका मतलब ये है कि हुसैन मुझे इज्जत कहाँ से मिली है? फिर सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया, हुसैन मैं वो उमर हूँ जिसको ऊँट चराने भी नहीं आते थे। ये आपके नाना और उनकी आल का सदका है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। हुसैन मैं आपको कैसे रोक सकता था? अब्दुल्ला मेरा बेटा है और आप मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं। अब्दुल्ला और आपकी बराबरी कभी नहीं हो सकती। क्या अब्दुल्ला का बाप आपके मुकद्दस बाप जैसा है? क्या अब्दुल्ला की माँ आपकी मुकद्दस माँ जैसी हैं? क्या अब्दुल्ला की नानी आपकी मुकद्दस नानी जैसी हैं? और क्या अब्दुल्ला का नाना आपके नाना पाक जैसा है? ये फरमाकर सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रोने लगे। फिर सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ अंदर ले गए। जब ईरान फतह हुआ और ईरान की शहजादी शहरबानो जब जंगी कैदी होके आई तो हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी जनाब शहरबानो से हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने भी ये ख्वाहिश अपने वालिद से जाहिर की तो सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। जब बीबी शहरबानो को लाया गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कौनैन का शहजादा हुसैन किधर है? जब सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम तशरीफ़ लाए तो सैयदना हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया, ये ईरान की शहजादी कौनैन और जन्नत के शहजादे के लिए। और फिर सैयदना हज़रत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला की तरफ देखा और फरमाया, अब्दुल्ला कभी हुसैन की बराबरी न कर। हज़ारों वाक़यात ऐसे हैं कि सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया, बेटा कभी हुसैन से बराबरी करने के बारे में सोचना भी ना। हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन इनका हुसैन उनका, हुसैन सबका हुसैन रब का, वो खुशकियों का समंदरों का, वो सूफियों का कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में कहीं से पोशाकें आईं
आपने वो पोशाकें लोगों में तकसीम फरमाई और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को भी वही पोशाक पहनाई, लेकिन सैयदना हज़रत इमाम हसन और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन को ना दी। इस वाक़या को 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद चल के हसनैन करीमैन के पास गए। दोनों शहजादों को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बैठाया। हज़रत इमाम हसन को दाईं जानिब बिठाया, हज़रत इमाम हुसैन को बाईं जानिब बिठाया और दोनों शहजादों से इरशाद फरमाया, ऐ शहजादों, मेरे पास 3 दिन पहले कुछ पोशाकें आई थीं। मैंने आप दोनों के लिए इसलिए नहीं रखी कि वो आपके शायाने शान नहीं थीं। मैंने उसी दिन यमन की तरफ एक आदमी को पैसे दे के रवाना किया कि मेरे शहजादों के लिए कीमती पोशाकें लेके आओ, और आज वो लेकर आया है और मैं वो पोशाकें लेके आज आपके पास आ गया हूँ। फिर सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थैले से वो पोशाकें निकाली और अपने हाथों से दोनों शहजादों को पहनाई। फिर सैयदना हज़रत उमर वहीं पे बैठ गए। दोनों शहजादे खेलने लगे और आप उनको देखते रहे। हज़रत इमाम बाकर रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब मदीने की गली में तशरीफ़ ला रहे थे कि सामने से सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा भी आ गए। मौला अली के साथ उनके दोनों शहजादे भी थे, हसनैन करीमैन भी थे। सैयदना हज़रत उमर और अली उल मुर्तज़ा एक दूसरे की तरफ बढ़े। सलाम के लिए सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ा और सैयदना इमाम हसन और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम दोनों बुजुर्गों के दाएं बाएं हो गए। सैयदना हज़रत हसन अली मुकाम ने अपने बाबा अली उल मुर्तज़ा का हाथ पकड़ लिया और सैयदना इमाम हुसैन अली मुकाम ने सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब का हाथ पकड़ लिया। सुबहान अल्लाह, वो क्या मंजर होगा। और दोनों बुजुर्ग आपस में बातें करने लगे। जब खिलाफत की जिम्मेदारियों की बात छिड़ी तो सैयदना हज़रत उमर रोने लगे और रो के फरमाने लगे, मैं डरता हूँ कि मेरे अदलो इंसाफ में कोई कमी कोताही ना हो जाए। कल अल्लाह के सामने मैं क्या जवाब दूंगा। इस पर सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मैं आपके अदलो इंसाफ का गवाह हूँ कि आप जैसा अदलो इंसाफ मैंने आज तक नहीं देखा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बाद सैयदना इमाम हसन अली मुकाम ने भी यही अल्फाज दोहराए। तो सैयदना हज़रत इमाम हसन अली मुकाम के बाद सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम ने भी वैसा ही फरमाया। सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दोनों शहजादों की गवाही सुनी तो आप घुटनों के बल ज़मीन पे बैठ गए, दोनों शहजादों को पकड़ लिया, सीने के साथ लगाया और फरमाया, ऐ मेरे नबी के शहजादों, क्या क़यामत के दिन तुम इसी तरह अल्लाह के सामने मेरी गवाही दे दोगे। तो दोनों शहजादों की आंखों में आंसू आ गए और सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा की तरफ देखा तो सैयदना हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उमर गम ना कीजिए, मैं अली उल मुर्तज़ा कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आपके अदलो इंसाफ की गवाही दूंगा और मेरे दोनों बेटे भी गवाही देंगे। बात दिन की नहीं, अब रात से डर लगता है, घर है कच्चा मेरा, बरसात से डर लगता है, और तेरे तोहफे ने दिए मुझे खून के आंसू, जिंदगी तेरी हर सौगात से डर लगता है। तू पता नहीं अवाम को क्या किसे कहानियां सुनाता रहा, पर हकीकत कुछ और निकली। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक के तू किताब ख्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या यूं नहीं है जैसे आपको सुनाया जाता है। तरबियत हो सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इमाम हुसैन अली मुकाम की बात का गुस्सा करें, ये कभी हो नहीं सकता। वाक़या यूं है कि सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम और आपका एक दोस्त खेल रहे थे कि वहाँ से सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का गुज़र हुआ। तो इमाम पाक के दोस्त ने पूछा, ये नौजवान कौन है। इमाम अली मुकाम ने इरशाद फरमाया, ये हमारे ग़ुलाम का बेटा है। जब ये बात सैयदना हज़रत अब्दुल्ला के कानों में पड़ी तो आपकी मुसर्रत का आलम ये था, जिस काम की तरफ आप जा रहे थे वहाँ पे नहीं गए, वहाँ से सीधा अपने घर तशरीफ़ लाए और सैयदना हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की, अब्बा जान,
خوش ہو جائیے، آج ہمیں آل رسول نے اپنا غلام مان لیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیسے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر سیدنا حضرت عمر نے چمڑے کا ٹکڑا دیا تھا کہ جاؤ لکھوا کے لاؤ۔ جب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لکھوا کے لائے تھے تو سیدنا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی تحریر کو چوما اور چوم کے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ سے ارشاد فرمایا، بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن پہ رکھ دینا۔ جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے عمر کیا اعمال لے کے آئے ہو، تو میں یہ سند دکھا کے ان سے کہوں گا فقط آل رسول کی غلامی کی سند لے کر آیا ہوں۔